my topic that is assigned to me. आप लोग मैं ना बैकग्राउंड क्या है बोलूँगा आपका बेटा मतलब वेटनरी साइंस से है साइंस से हम सारे हैं आपके साइंस से हो बेसिक साइंस आप बेटा आर्ट्स से आप हाँ आर्ट्स आप आर्ट्स आप आर्ट्स आप आर्ट्स आर्ट्स अब सारे चलो anyways actually then I don't think it is suitable for you but then anyhow see beta you know that the field I have been given a diary herd related to the advancement in the treatment of the diary herds so that means आप लोग तो देखे हैं ना maybe you are more privy to the human medicine because everybody is able to see that at home तो उस हिसाब से आप क्या जानते होंगे कि with each passing day there is development of different types of treatment it is not कि जो 50 साल पहले ट्रीटमेंट दिया जाता अब वही दिया जाता है it is because we want ease of the life and the sufferings that were previously being considered by the patients that could be reduced but with passage of time we also know the new diseases new emerging diseases are arising so we have to cope up with the system so that we will be able to prevent sufferings and simultaneously cope up with those which are actually emerging infections whether it is in diseases or any respect of the things means in the treatment aspect likewise is the dairy herd when we talk of the dairy herd it means which group of the animals or cattle which is actually able to give us milk and in that perspective we as veterinarians also have the same idea as well have the same mandate to bring forth the treatments to bring forth the treatments which are actually reducing the sufferings of the patients so likewise what we try to do we actually develop into the such kinds of field which is actually previously not explored and in that we explore in the base of the scientific field we see if there is some kind of a literature available to that particular field and we can utilize it or we can channelize it or we can modify it in a way that which can be utilized for the treatment purposes so for that matter these therapies which actually are not previously as utilized as a treatment but right now also can be utilized for the treatment but not all the definitive treatments these are called novel therapies what topic I have been assigned is a novel therapies in case of dairy herds novel therapies are the therapies which are actually considered to have a potential to treat the particular ailment but हाँ बेटा तो उसको कहते हैं हम नॉवल थेरेपीज अब हमने समझना है कि कैसे डेवलप करते हैं पहले आपको मान लो हम एग्जांपल एक देते हैं यहाँ पे हमारा जो काम चल रहा है दैट इज स्टेम सेल रिलेटेड वर्क स्टेम सेल अब हम उसमें नहीं जाएंगे स्टेम सेल क्या है वो बात हम पहले नॉवल थेरेपीज पे करेंगे तो stem cell till now is not any standard treatment for any kind of an ailment, barring specific leukemias, blood cancers and some other cancers to which there is specific transplantation of the bone marrow or hematopoietic stem cells. These few leukemia type of the cancers, blood cancers are there, which actually have definitive treatment with the hematopoietic stem cells. Rest of all the type of the diseases in the world right now there is no standard which we can say is recommended by any government or this any kind of agency which actually regulates the medical authority so in that case we can say stem cells are being considered to have potential to treat any ailment but currently they don't treat as a standard to any patient ठीक है but we can utilize it if there is no treatment to particular condition. On that basis, when we utilize it for particular condition, we say it is in the clinical trials. So going into clinical trials means we have to first pass different stages. When I told you the ex vivo means in vitro part, which we do in the lab like this, then we go for it to lab animals. वो उसको ड्रग को हम देते हैं उसमें उस पर्टिकुलर कंडीशन को पहले डेवलप करते हैं फिर उसको देते हैं और देखते हैं उसमें कोई असर तो नहीं मतलब पहले कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं होती ठीक है इसको होते हैं दो टाइप एक होता है सेफ्टी इंडेक्स और दूसरा होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हेन वी गो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल लैब एनिमल स्टडी वी गो फॉर द सेफ्टी इंडेक्स इवैल्यूएशन देन वंस वी आर सेइंग दैट इट इज सेफ देयर इज नो इशू and simultaneously we can utilize it for the purpose of the therapeutics. Then we evaluate the therapeutic effects. The particular condition, for example, if we see there is a, for example, osteoarthritis,
जोड़ों में दर्द जो नॉर्मल होता है, तो उसमें आपको पता है पहले कि उसमें दर्द होता है, और दर्द के साथ में पता है कि ब्लड के क्या चेंजेस आ जाते हैं, और एक्सरे में उन जोड़ों को क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो इफ इट हैपन्स टू बी लाइक दैट, अब हम अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पहले वो पेशेंट को क्या हमने देखना है, दर्द कम हो गया कि नहीं। इफ इट रिड्यूसेस, तो वी कैन से देयर इज सम थेरेप्यूटिक इफेक्ट। Now, if it reduces, we have to see whether it is a temporary effect or it's a long-lasting effect. If it happens to be a long-lasting, obviously positive. Then there is one more benefit, is when that is to be evaluated, is that whether the change that had actually occurred in the joint, is this treatment going to actually reduce such changes in the joint, so that afterwards it will be a long-lasting result. And for that matter, we go for the longer period of the studies. So when we go for the longer period of studies, there are different phases of the clinical trials. First, what we do, we go for the evaluation, safety, I told you. Afterwards, therapy. Therapy में first small population of the humans or animals, हम animals की बात बताएंगे. Then comes this further larger population and increasing the time also. Then further a larger one. And at the end, finally, we conclude whether this therapy can be considered to be as a clinical standard of this therapy or not. If it till now remains only in the clinical trials, we say it's a clinical trial and it's a novel therapy, but it cannot be considered as a standard therapy. Once the drug it is being considered, it has all the therapeutic benefits as well as it has safety. Besides that, there is no longer change in the body system that it can actually lead to some problem. So then only we consider it to be as a standard of the particular disease. This is called a novel therapy. Now, novel therapies we deal in is a limited field. In the world, there are a lot of fields. If we talk about the herbs, there are the gene therapies, there are stem cell therapies, there are even the probiotic therapies, and even maybe you might have got the compendium, or it is have to be received. आपने लोगों ने लिया है कि नहीं? Compendium लिया हमने? Compendium. नहीं, इनको मिला भी जो ना वो लेक्चर हमने बनाया, इनको मिला हो? तो that no issues. तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं. आप उसमें कौन कौन से देखते हैं? फॉर एग्जांपल डेयरी हर्ड्स में देखा गया स्टेम सेल का भी रोल. देयर इज अनदर रोल दैट इज कॉल्ड पीआरपी थेरेपी. देयर इज क्या बोलते हैं प्रोबायोटिक थेरेपी. देयर इज इवन व्हाट वी कॉल इंटरल्यूकिन थेरेपीज. एंड लाइकवाइज देयर आर नंबर ऑफ द थेरेपीज व्हिच वी कैन से कैन बी यूटिलाइज्ड एज द नोवल थेरेपी. बट ऑल दीस थेरेपीज एक्चुअली आर इन द clinical trials. They are not being considered to have gone through the actual clinical standard treatment. Fine. Now, if we talk about the stem cell therapy, ना 3 बंदे मैक्सिमम आएंगे, ज्यादा नहीं, 3 बंदे प्लीज. हाँ, अब 3 बंदे में ज्यादा. चाहे वो बोन मैरो हो, टिश्यू कोई हो, एनी टिश्यू, उससे हम क्या करते हैं, we take the sample of that and that we process it. Now, normally in our lab we take 2 samples. One is of the bone marrow, another one is of the adipose tissue, from which we actually harvest the stem cells. तो जब हमने ये कर लिया तो उसका एक प्रोसीजर है. What procedure is? फॉर एग्जाम्पल बोन मैरो में इसको हम 2 तरीके से स्टेम सेल्स कल्चर कर सकते हैं बोन मैरो को. या तो हम करते हैं होल बोन मैरो मेथड, और एल्स व्हाट वी डू, वी गो फॉर द डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड. ठीक है. डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड में एक चीज़ है कि उसमें हमने डेंसिटी ग्रेडियंट मीडिया लगाना पड़ता है, और उस बेसिस पे जो मीडिया है वो ब्लड बोन मैरो को या ब्लड को डिफरेंट लेयर जोन्स में कर देता है, आइसोलेट. एंड वंस वी हैव बफी को डेवलप विद दैट, फ्रॉम दैट वी एक्चुअली कल्चर द स्टेम सेल. इफ वी टॉक अबाउट होल बोन मैरो मेथड, इन दैट केस वी ओनली डाइल्यूट बोन मैरो विद द स्पेसिफिक मीडिया एंड देन वी पुट इट टू कल्चर. And after 24 to 48 hours, we reduce the contents of the actually RBCs. And rest of the cells which actually will be stem cells, they will be attached to the culture flask. And when they are attached to culture flask, they start proliferating. We give that particular environment with particular cells, and they grow. Finally, it is not this concept. If we talk about adipose tissue, we take the first adipose tissue, we actually digest its collagen content, and then the cells that will come out, they will adhere to the plastic, and then they are able to proliferate. But we have to remember, this is not the sole way wherein we actually go for the these cells ought to be characterized. हमने पहले कंफर्म करना पड़ता है कि whether these are stem cells or not. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कल्चरिंग के लिए देते हैं,
ओटी से हम सैंपल्स को लेते हैं, वंस वी पुट इट टू कल्चर हम इसको फिर डाल देते हैं इसमें. दिस इज द इंक्यूबेटर व्हाट इज एक्चुअली इट्स नॉट नॉर्मल इंक्यूबेटर, इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर बिकॉज इट इज pH is to be maintained so that there be no death of the cells. तो उसको हम इसमें डालते हैं. फाइनली अंडर माइक्रोस्कोप इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप से इसमें हम देख लेते हैं. ठीक है, ठीक है. जो टिश्यू होता है ना स्टेम सेल्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे काम करता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है. मैं आपको एक मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ. अब जब मैं कश्मीर आऊँगा, मेरे सारे यहाँ पे कश्मीरी बहनें हैं, यहाँ पे एक कश्मीरी भाई भी है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैसे बात करूँ, क्वेश्चन पर कर रहा हूँ. अब अगर ये सारे अंग्रेज होते या बाहर वाले होते, मैं कर अंग्रेज पर मैं क्या पे असर क्या पता की वजह लग मैं जबान कर इस्तेमाल. लाइक वाइज स्टेम सेल्स स्टेम सेल्स वर्क ओनली एज पर दियर एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट गो यो माहौल, यु तिम माहौल मिलो ना, माहौलस में तक सेल तक टिश्यू मतलब कोलेजन होता है टिश्यू में, उसमें प्रोटीन आइटम्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ब्या माइक्रो एनवायरनमेंट तक क्या केमिकल्स चाहे तुम ग्रोथ फैक्टर्स इंटरल्यूकिन वट एवर इट इज तिम एनवायरनमेंट बनाओ. यह सोरी अंद पक सेलन यह वनान एक्चुअली स्टेम सेलन तुम क्या कर. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा कि मुझे हार्ट के लिए ट्रीटमेंट देना है, हार्टस में पुन माहौल अत क्या माहौल सेल त्रो ना अमस अगर पे ना पन माहौल यम लागन अकॉर्डिंगली तमें माहौल हिसाब कम कर. वह अगर बह त्रावक समी मज सिकनस मज अत पन समी माहौल ये लागन समी हिसाब कम कर. ऐसे अगर बह त्रावक किडनी मज त्रावक लिवरस मज लागन अकॉर्डिंगली कम कर. मगर ये चीज़ कि अगर वह मामूली चीज़ क्या गो खराब पत लोग अमिस तमिच सिग्नल तक मिलन तेल वन लाग हु चीज़ बनाने कहें. दैट इज वाई इट हैज़ कम टू नोट्स क्या यह हेको हर चीज़ हमेशा हर कुछ जाए कहें. अदरवाइज अगर हम इसको उस एनवायरनमेंट में डालेंगे जहाँ पे इसको एनवायरनमेंट नॉर्मल मिलेगा, तो वहाँ पे ये एक्चुअली उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करे. मन गलत चीज़ वह अंदर में नहीं डालते हैं, उसकी इर्द गिर्द हम डालेंगे. जब हम उसको इर्द गिर्द डालेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से क्या होगा, नॉर्मल सिग्नल्स होगा. तो वो उसको बताएगा नसा तशी बढ़ मतलब टिश्यू सेल नए पे बनाने मैट्रिक्स त्रावन चाहे उस मैट्रिक उस हिसाब से फिर ये काम करने लगे. मगर अत मिले अमिस सिग्नल्स तम कि वजह से यह क्या जहर बन, यह अम क्या बन कैंसर बन. तो वहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ. दैट इज वाई स्टेम सेल्स आर बीइंग रेस्ट्रिक्टेडली बीइंग यूटिलाइज्ड. दे कैन नॉट बी अंदर दून लगाओ क्योंकि उसमें इस चीज़ का खतरा है. ठीक है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज ऑल इन वन थेरेपी. चाहे आँख के लिए जरूरत हो आँख लगा दो, ब्रेन के लिए जरूरत है ब्रेन में लगा सकते हो, स्किन में जरूरत, किडनी में लिवरस में जरूरत, हार्ट में जरूरत है. मगर इन चीज़ों वही ख्याल थो. अवे आजकल वन कि स्टेम सेल्स लगाओ इट शुड बी पुट alongside some scaffolds designed in a way which actually mimics the environment of the particular tissue, so that when it is put it over there or transplant over there, it will have that particular environment and it will start activating like that, and these will help in getting the normalization of that particular tissue. ठीक है, उसे कैसे बचा जा सकता है? यूजुअली हमारे घर में कहते हैं कि जो छोटे हैं वहाँ मत जाओ, इसका को घुसला है. मैंने सुना है ऐसे. बेटा पहले आपको हमेशा याद एक चीज़ रखनी है, अगर एक ब्रुसल आपने सुना है ना, वेरी मच रैम्पेंट प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी, एक दिक्कत चाहिए. अब उसमें आपको 3 चीज़ों का ख्याल है. पहले जो आपका जानवर है ना, तमिस कैसे आसन वही बच्चे ना, अगर डायरी की बात नहीं करें, शीप गोट की हम बात नहीं करें, तक करो हमें ख्याल कि तमिस पे इंसान एबॉर्शन एबॉर्शन कर 3 फेजस मत 9 मंथ 6 रेत पे मान लो एबॉर्शन. अगर सह हिस्ट्री तेल खोज, या अगर अमिस एबॉर्शन लोग पे 6 मतलब 5-6 रेत पे सोचन ना खतरा ब्रुसल. तम पे क्या कर, अगर मैं कुछ से बॉस खोत यप किन या पे गर्दन हेन लोगों इन्फेक्शन या फोड़ फटन या जोड़न खसन वरम, तम सात हेस थो. 3 चीज कुन विज अमिस चीज गम कि बेस पे लारिम ते सात गई प्रॉब्लम गम तम सात इसलिए हमेशा एडवाइजेबल ये सात इंसानस तम सात इंसान थोन हमेशा ख्याल कि तमिस नॉर्मल टेम्परेचर वेम्परेचर. बे दोम चीज दोदस में प्रॉब्लम क्या बे पान ये सात दोद वो हमेशा आफ्टरवर्ड कर साफ लाग ब्रज तक अत साफ कर मकलान दोद वो पे कर साफ. ये दूध में ही होता है ज़्यादा.
तो ये ऐसा नहीं है कि दूध में नहीं आता है, दूध में भी होता है, इसलिए जो आम तूच ना ये रॉ मिल्क से ज़्यादा करके मुझे ज़्यादा होता चांस। सर इंडिविजुअल्स पे क्या असर पड़ता है जैसे कि बेटा इसमें बड़ा मैं खुद से उससे गुजरा हूँ मैं आपको क्या बोलूँ, वो 2 महीने मेरे लिए कितने तकलीफ थे। आई वॉज लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बोल रहा था अब मैं पता नहीं उड़ पाऊँगा कि नहीं, बिकॉज आई हैड इसमें अभी डिफरेंट टाइप्स ब्रुसुला होते हैं, अपोर्चुनिटी टीम टाइप तथ मन ब्रुसुला मिलिटेंट्स यम्स की वजह से प्रॉब्लम क्या दाग करान चिल मिलिटेंट्स आसान ये गोट या शीप से ज़्यादा, उनसे ज़्यादा लेकिन होगा इनसे इंसान ये फिर होते हैं किसी में भी, लेकिन उसका मेन जो बस सुशु का आसान नहीं है जो तो हम सुशु को हां एक चीज होगा इसलिए तो ख्याल क्या गाव ये मुझे गाय मुझे ना कि गाय दिखट मुझे करना तो शु काटस ही खाया था छाव जी दी खाया था इवन ये हर कोई स्पीशीज में लगा चाहे अगर पैट तो रशियन छु ना मन में से है